ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈالا. بلی کے خواب میں چچڑے. بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈالا. میں نے اس کا نام پوچھا. اس نے کہا نام کچھ نہیں ہے. میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا. اس نے کہا میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے. یہ مرزا پر وحی لانے والا فرشتہ معاذ اللہ. مرزا کہتا ہے کہ اس کا نام یہ. مرزا پہ الہامات ہونے شروع ہو گئے. وحیوں کا نزول ہو رہا ہے. وہی سنیے آپ. پہلی وحی وریشن عمر براتوس یا پلاتوس ہوا شانا ناسا. یہ وحی نازل ہوتی تھی. بغیرت یہ وحی نہیں ہے. یہ تو دوزخ کی آوازیں ہیں جو تو سن رہا ہے. مرزا نے آگے بڑھ کے اور کمال کیا. مرزا نے کہا مجھ پہ انگریزی میں وحی نازل ہوتی ہے. سنیے میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو. تذکرہ مجموعہ الہامات پیج نمبر 121 120 119 مرزا غلام احمد قادیانی. انگریزی وحی سنیے. یو مسٹ ڈو واٹ آئی ٹولڈ یو. پہلی وحی. تھرو آل مین شور بی اینرجی بٹ گاڈ. دوسری وحی. از ود یو ہی شیل ہیلپ یو words of God cannot exchange. تیسری وحی. I shall help you. چوتھی وحی. ہنس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا. You have to go امرتسر. چوتھی وحی. پانچویں وحی. He holds in the ضلع پشاور. پانچویں وحی. پشاور کو بھی نہیں چھوڑا. اور آگے بڑھیے. کتاب کا نام حقیقت الوحی صفحہ نمبر 304. وحی نازل ہو رہی ہے. آئی لو یو. تیری بیوی زندگی پر کہتی رہی پھٹے منہ خبیث. تو کہتا ہے آئی لو یو. اللہ نے وہی نازل. آئی لو یو. آئی ایم ود یو. یس آئی ایم ہیپی. لائف آف پین. آئی شیل ہیلپ یو. آئی کین ول یو. آئی کین واٹ آئی ول ڈو. وی کین واٹ وی ول ڈو. گاڈ از کمنگ ایز آرمی. یہ وہی نازل. گاڈ از کمنگ ایز آرمی. He is with you to kill enemy. The day shall come when God shall help you. Glory be to the Lord, God maker of earth and heaven. یہ انگریزی میں وہی نازل ہونا شروع ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی پر. آگے بڑھو. بیان کیا کہ حضرت کی والدہ نے کہا مرزا غرارے استعمال کیا کرتے تھے. غرارہ عورتوں کا ڈریس ہے. غرارہ استعمال کرتے تھے. میں نے کہہ کر وہ ترک کروا دیے. اس کے بعد آپ معمولی پاجامہ استعمال کرنے لگے. خاکسار عرض کرتا ہے کہ غرارہ بہت کھلے پائچے کے پاجامے کو کہتے ہیں جو ہندوستان میں عورتوں کا لباس ہے. مرزا نے غرارہ بھی نہیں چھوڑا. غرارہ استعمال کیا. آگے بڑھو. مرزا نے ملازمت کے لیے امتحان دیا. قانونی کتابوں کا مطالعہ میرے باپ نے شروع کیا. امتحان میں فیل ہو گیا. بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب نے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت صاحب کو ایک گھڑی جیبی تحفے میں دی. حضرت صاحب اس کو رومال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے. زنجیر نہیں لگاتے. اور جب وقت دیکھنا ہوتا تو گھڑی نکال کر ایک ایک ہن سے 5 10 انگلی رکھ کے 1 بجا ہے 1:30 ہوئے ہیں 5 پہ انگلی رکھی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ ایسے وہ وقت کا حساب لگایا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی. مرزا صاحب کہتے ہیں ایک دن میری ماں نے کہا کہ چوزا ذبح کرو. میں چوزا ذبح کرنے لگا انگلی کاٹ لی. یہ اللہ کے نبی. آگے بڑھیے آپ. کپڑوں کی احتیاط کے بارے میں مرزا کا حال یہ تھا کہ واسکٹ پاجامہ کرتا اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے. صبح اٹھ کے جب نکلتے پہن کے تو سارے لوگوں کا ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہوتا. یہ لکھا. کتاب کا نام ذکر حبیب پیج نمبر 65. باہر مردوں میں نماز باجماعت ہونے کے علاوہ آخری سالوں میں مرزا صاحب نے ایک عرصے تک عورتوں کی امامت کی. اپنے کمرے میں عورتوں کو نماز پڑھاتے تھے.
18 जनवरी 1905 को जबकि कादियान के हाई स्कूल में हेड मास्टर था, मैंने मिर्जा कादियानी की खिदमत में एक रुक्का लिखा जिसका असल बीमाए जवाब दर्ज करना मंसूब है। उम्मीद है कि नाज़रीन की दिलचस्पी का मौजिब होगा रुक्का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अब मिर्जाई था, उसने लिखा, हजरत अक़दस मुर्शिदुना व महदीना मसीह मऊद अस्सलाम वालेकुम। साहबजादा मियां महमूद का नाम बराए इम्तिहान मिडल आज अरसाल किया जाएगा, जिसमें फॉर्म की खाना पूरी करनी है। इसमें एक खाना है कि लड़के के बाप क्या करता है, क्या लिखे। कहने लगा नबूवत लिख दो। लड़के का बाप नबूवत का काम करता है, वो नबी है, ये लिख दो खाने के अंदर कि बाप क्या करता है। एक मर्तबा मिर्जा ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद लोगों ने कहा कि हजरत दुआ तो कीजिए। कहने लगा सबकी पढ़ा दी। दुआ की क्या जरूरत, सबकी पढ़ा दी मैंने। तुम क्या समझ रहे हो इसकी पढ़ाई? मैंने सबका जनाजा एक साथ पढ़ा दिया तुम लोगों का। तो और बहुत सारी बातें, बहुत कुछ है। बेवकूफ है लोग कि जो मिर्जा को नबी मानते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं सुन्नी मुसलमान, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये बात है 1890 की, मेरा हाफजा अगर खता नहीं कर रहा। देवबंदियों के पीरो मुर्शिद इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने उस वक्त पीर मेहर अली शाह साहब से कहा कि हजरत आप अपने वतन जाइए, आपका अपने वतन में रहना बहुत जरूरी है। अनकरीब एक फितना पैदा होने वाला है और उस फितने को खत्म करना यह आपकी जिम्मेदारी है। आप उस फितने को खत्म करेंगे। पीर साहब वापस आ गए, फिर नहीं गए, रहे। मिर्जा का फितना शुरू हो गया। मिर्जा ने अहादीस को तावील की कैंची से काटना शुरू किया, लोगों के सामने उसे पेश कर दिया। सरकार पीर मेहर अली शाह साहब के ख्वाब में तशरीफ ले आए। सरकार ने फरमाया, पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते, सरकार ने फरमाया तुम मिर्जा कादियानी की तरदीद करो। यह शख्स मेरी अहादीस को तावील की कैंची से कुतर रहा है, तुम खामोश बैठे हो, उठो मेरे दीन की खिदमत करो। देख नहीं रहे कि यह क्या कर रहा है। मिर्जा का काम बड़ा। पीर मेहर अली शाह साहब ने शम्सुल हिदाया तसनीफ फरमाई। हिंदुस्तान के उलमा मशाइख सबके पास, पाकिस्तान हिंदुस्तान वो सब मामलात, ये किताब पहुंच गई। सारी किताब इस हिस्से में भी आई, बड़े सगीर पाको हिंद के, और उस हिस्से में भी पहुंची। उसने मिर्जाइयों को परेशान कर दिया। मिर्जा सब के सब परेशान हो गए। पीर मेहर अली शाह साहब ने फिर मुनाजरे का चैलेंज दिया। मिर्जा आए और पीर मेहर अली शाह से मुनाजरा करे। तारीख भी दे दी, 24 अगस्त को यह मुनाजरा होगा लाहौर में। पीर मेहर अली शाह साहब पहुंच गए। 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 29 अगस्त तक मिर्जा नहीं आया, राह फरार इख्तियार की। फिर मिर्जा के चेले चपाड़े आए, कहने लगे कि ऐसा करते हैं कि एक ऐसे शख्स को कि जो अपाच हो, माजूर हो, उसको बिठाते हैं। मिर्जा भी दुआ करेगा, आप भी उसके लिए दुआ करें। जिसकी दुआ से वो ठीक हो गया, समझो वो हक पे है। पीर मेहर अली शाह साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फरमाया बुलाओ अपने बाप मिर्जा को, अगर मुर्दे भी जिंदा करना पड़े, मेहर अली मुर्दे भी जिंदा करके बताएगा। बुलाओ अपने बाप को। पीर मेहर अली शाह मुर्दे जिंदा करके बताएगा। अल्लाह अकबर, एक हलचल पैदा हो गई। मिर्जा बड़ा परेशान हो गया, लोग बड़े परेशान हो गए। जब ये सारा मामला खत्म हुआ तो लोगों ने पूछा पीर मेहर अली शाह साहब से, आपने ये बात कैसे की कि अगर मुर्दे भी जिंदा करना पड़े तो मैं मुर्दा जिंदा करके बताऊंगा। फरमाया सुनो, मैं आलम कश्फ में हुजूर के जमाले बाकमाल से मेरा दिल इस दर्जे कवी हो गया था कि अगर इससे बढ़कर भी कोई दावा करता तो अल्लाह मुझे सच्चा साबित करने के लिए उस दावे को पूरा करता। अल्लाह, उलमा ने इस पे काम किया। हाजी साहब हमारे इसके गवाह हैं, और इनके साथ जो साथी रहे मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल मुस्तफा अल अजहरी साहब काम किया, मुफ्ती वकारुद्दीन साहब काम किया, मुफ्ती महबूब रजा खान साहब काम किया।
उलमा किराम ने इस मसले पे काम किया। हर मामले के अंदर पहले जितने भी मामलात थे सुन्नियत दिखाई देती थी, आज सुन्नियत किसी भी मामले में दिखाई नहीं देती। किसी मामले तालिबान से मुज़ाकरात हो, सुन्नियों का नाम और निशान नहीं। ये धरने और ये सारे प्रोग्राम, एक को शादी करनी है कफन लेकर के आ गया, सुन्नियत गायब, सुन्नी गायब, दिखाई नहीं दे रहे। नहीं सुन्नियों, इस तरीके से नहीं जीना है। हमें बताना है कि हम इस मुल्क की अक्सरियत है, और यह बावर करना है कि सुन्नी जिस तरफ हो गए वजीर आजम, वो सुन्नियों ने छोड़ दिया, वो वजीर आजम क्या काउंसलर भी नहीं बन सकता। इतनी ताकत पैदा करनी है, इतना पावर और इतनी यकजहती अपने अंदर हमने पैदा करनी होगी, तभी जाकर के हम ये सारे मामलात का मुकाबला कर सकते हैं। वरना मुझे सुन्नियत दूर तक दिखाई नहीं दे रही। जो मामलात पाकिस्तान के साथ हैं वो सब आपके सामने, दुनिया हंस रही है। एटमी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान का ये हाल, दुनिया हंस रही है, लोग हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। खुदा के लिए दुआ करो सुन्नियों, अल्लाह इस पाकिस्तान को बचा ले, अल्लाह इस पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह मेरे प्यारे मुल्क को बाकी रखे। याद रखो, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो ये दीन की खिदमत और ये दीन का काम हम किस जगह पर करेंगे। हमारी इज्जत है तो पाकिस्तान से है, हमारा नाम है तो पाकिस्तान से है। और ये जो इतना बड़ा फितना खड़ा हुआ, मैं तुम्हें सच कहता हूं, इसके पीछे भी कादियानियों का हाथ है। ये कमजोर करना चाहते हैं मुल्क को, और ये पैसा फराम करते हैं, मदद फराम करते हैं माली तौर पर, जिसकी वजह से ये मामला चलते हैं और पाकिस्तान कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। अल्लाह ताला सियासतदानों को अक्ल सलीम अता करे, अल्लाह ताला जर्नलों को अक्ल सलीम अता करे, अल्लाह तबारक व तआला हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता करे। ये सारे लोग सर जोड़ करके बैठे और मेरे पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल दे। बिजनेस नहीं है, लोग परेशान हैं। पार्सल आप पंजाब भेजना चाहे, नहीं जा रहे पार्सल, लोग परेशान हैं। वहां से माल नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं। अब ये बकरीद उनकी किस तरीके से गुजरेगी, खुदा की कसम लोग परेशान हैं। आप दुआ करो हर नमाज के बाद। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह अपने हबीब के सदके आज ही ये मामला खत्म फरमा दे, और कल हमें पता चल जाए कि सारे मामलात खत्म हो गए और मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन और सुकून है। सुन्नियों, ये पैगाम लेके जाओ, हमने मिल के काम करना है, मिल के जद्दोजहद कर दी। पहले जो लड़ाइयां हो गई वो हो गई, उसको भूल जाओ, दफन करो उन लड़ाइयों को। हमने आगे बढ़कर के अपने मसलक की खिदमत करनी है, और हमने इस असम्बलियों में पहुंचना है। वो लोग जो ये कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, क्यों नहीं? असम्बलियों में पहुंचोगे तो असम्बलियां गूंजेगी नारे रिसालत की सदाओं से। जब असम्बलियों में जाओगे नहीं तो वहां सुन्नियत का काम कैसे होगा? इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरा काम तुम्हें जहन देना है, मुत्तहिद करना है, मुत्तहिद होके चलेंगे, नफरत खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो जब सलाम और दुआ हो जाए तो हल्के बना करके आप बैठ जाएं, नियाज को चक्के जाएं, कोई ऐसे नहीं जाए खाली, नियाज को चक्के जाएं। क्योंकि जहां कहीं पर किसी बुजुर्ग की महफिल होती है, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि उनकी तवज्जो महफिल पे होती है। सरकार के नाम की महफिल है, ताजदार खत्म नबुव्वत सरकार की नजर करम है। इंशाअल्लाह ताला ये हम चकेंगे तो हो सकता है कि इस नियाज से अल्लाह हमारी बीमारियों को खत्म फरमा दे। आप आए, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। वाखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।